So let's just bring in this problem along with the choice of positive directions that we've assumed for our truss, which is truss by matrix. Okay, first we need to record the data for this truss. Let's say we need to write down all the nodes that we have. Let's make a table first. Give me some time, please. Okay, so we're going to make table here. The E value is 29,000 PSI. The area is 10 inch square, all members. And these are the given data. And we have nodes. For each node, we've got X coordinate and Y coordinate, right? So it's beginning with node 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We have 6 nodes. Of course, we will have to confirm before embarking on the solution that the problem is determinate. M plus R is equal to 2J, right? After you confirm this, you will begin with enlisting the data first. So for node 1, the X and Y coordinate are, this is our node 1, right? According to the, the system of coordinates that we picked, this is the X, and this is the Y coordinate system, right? So this is where our origin is. So node 1 has 0 X coordinate and Y is 10, right? So 0, 10. For node 2, it is 0 and 20. For node 3, it is 22 and how much is that? 30, 45. Yes. And for node 4, it is 44 and 30. Okay. And for node 5 would be 44 and 10. And node 6 would be 22 and 0. Next, we note down for each member the negative node and the positive node, right? For each member. So write down the members here. And then the negative
node and positive node. Okay, we have got 9 members, so we need 9 rows in this table. And 9. Okay. For member 1, now this is an arbitrary choice. ये जो आपको red arrows नजर आ रहे हैं, ये हमारा arbitrary choice है. You could have taken them in another way, but then once you take them in a certain way, you just stick to that. The rest of the calculation should be according to that choice. So for now, whatever directions we assumed, I mean, not assumed, but just shown for the negative and the positive node, we're going to write them down. So node 1, negative node is, sorry, member 1, this is our member 1. So member 1 has a negative node of 1 and the positive node is 2, right? कैसे पता चलता है नेगेटिव नोड और पॉजिटिव नोड का? ये जो एरो है ये बताता है ये जहाँ से जिस डायरेक्शन से शुरू होता है वो नेगेटिव नोड होता है और जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है वो पॉजिटिव नोड होता है. तो मेंबर 1 के लिए नेगेटिव नोड 1 है और पॉजिटिव नोड 2 है. मेंबर 2 के लिए नेगेटिव नोड 2 है. ये कैसे पता चल रहा है? ये हमारा मेंबर 2 है और इसकी एरो चूंकि हमने इस डायरेक्शन में अस्यूम कर दिया है इसको, तो ये नोड 2 से नोड 3 की तरफ जा रहा है. हेंस नोड 2 इज नेगेटिव, नोड 3 इज इट्स पॉजिटिव नोड. यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर मेंबर कौन से दो नोड्स के बीच में लाई कर रहा है और हमने उसको किस डायरेक्शन में लिया हुआ है. सो 2 2 3. और थर्ड मेंबर 3 और 4 के बीच में, यानी थर्ड और फोर्थ. नेगेटिव नोड इज 3, पॉजिटिव नोड इज 4. फोर्थ मेंबर के लिए 4 5 हो जाएगा. फिफ्थ मेंबर के लिए 5 और 6 हो जाएगा. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही तो मुझे बता देना. सिक्स मेंबर के लिए 6 और 1 हो जाएगा. सेवंथ मेंबर 1 और 4 के बीच में है और हमने उसको इस तरफ पॉजिटिवली दिखाया हुआ है, तो 1 और 4 हम लिखेंगे सेवंथ मेंबर के लिए. 1 और 4. एट्थ मेंबर के लिए, दिस इज द एट्थ मेंबर फ्रॉम 2 to 5. 2 to 5. और नाइन्थ मेंबर के लिए फ्रॉम 3 to 6. 3 to 6. ओके. उसके बाद आप नोट कर लें नोडल लोड्स. नोड्स पे जो लोड्स रख रहे होंगे, हमारे 2 लोड्स अप्लाई हो रहे हैं. नोड 2 पे 40 के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और नोड 3 पे भी 30 के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो नोडल लोड्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. यहाँ हम नोड का नंबर लिख लेते हैं और इधर हम उसका एक्स कंपोनेंट इन किप्स जितना भी है वो लिख लेते हैं और यहाँ पे हम उसका वाई कंपोनेंट लिख लेते हैं उस लोड का. सो नोड 2 पे एक्स कंपोनेंट है लोड का 40 और वाई कंपोनेंट यहाँ पे 0 है एक्सटर्नल लोड का, राइट. सो ये एक्सटर्नल लोड के नोडल लोड्स हमारे सारे एक्सटर्नल लोड्स हैं. सो नोड 2 पे पी एक्स इज 40 और ये अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में होता तो हम इसका -40 लिख लेते, क्योंकि हमारा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन के लिए नहीं है, ये हमारे लोड्स की जो डायरेक्शंस है उनको भी इस इधर से ही हम साइन कन्वेंशन हमारा एक्सटर्नल लोड्स के लिए इधर भी एक्सटर्नल लोड्स के लिए हमारा यही कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव. अगर ये राइटवर्ड लग रहा है तो +40 में लिख रहा हूँ. अगर ये लेफ्टवर्ड लग रहा होता यानी नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो मैं -40 किप लिखता. क्लियर? dy यहाँ पे 0 है. और इसी तरह नोड 3 पे भी 30 किप का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड है, वर्टिकल में
नहीं है। सो ये नोडल नोड्स भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। इसके अलावा हम कॉन्स्ट्रेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे डेवलप होने हैं, यानी जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देते हैं यानी होल्ड कर देते हैं, उधर आपके पास एक रिएक्शन डेवलप होता है। यही होता है। पिन सपोर्ट है यहाँ पे नोड 1 पे। और पिन सपोर्ट क्या करती है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करती है इस नोड पे जहाँ पे वो अप्लाई हमने रखा हुआ है इसको। इसका मतलब ये, अब इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, हम इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि नोड 1 पे लेट्स मेक अ टेबल हियर फॉर द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स हमेशा किसी न किसी नोड पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, कि किस नोड पे हमारा कोई रिएक्शन ये डेवलप हो सकता है, कहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की गई है। अ, क्या हमने उसका एक्स डायरेक्शन फिक्स किया हुआ है, क्या हमने, यानी सिंपली पुट, क्या चीज फिक्स्ड है, क्या चीज रेस्ट्रेन्ड है, यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट्रेन है या नहीं है। और इसी तरह क्या वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको रेस्ट्रेन किया या नहीं किया। सो हमारा जो ये पिन सपोर्ट है ये नोड वन पे अप्लाई हो रहा है, और नोड वन पे हमारी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस की डिस्प्लेसमेंट्स रेस्ट्रेन्ड है। यस, यही करता है पिन सपोर्ट। सो हम कहेंगे नोड वन पे ये भी रेस्ट्रेन्ड है। मैं इसको ट्रू लिख देता हूँ कि हाँ ये फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स्ड है। और नोड 5 भी हमारा, उस पर भी एक सपोर्ट है जो कि क्या करती है, एक रोलर सपोर्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल को रिस्ट्रेन कर रही है, ये नोड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को तो सर सिर्फ वर्टिकल को कर रही है। सिर्फ वर्टिकल को कर रही है। तो हम इधर फॉल्स लिख देंगे कि ये नहीं रिस्ट्रेंड, और इधर ट्रू लिख देंगे कि ये रिस्ट्रेंड है। राइट, आप कोई और तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि इसी टेबल से हमें ये पता चलता है कि U1 एट एक्स, सॉरी, यू वन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 इज जीरो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज हमने उनको रेस्ट्रेन किया हुआ दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को। और एक और हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे, कि V5 is also zero, यानी कि vertical displacement at 5 is equal to zero, right? ये जो U और V है ये भी इसी X और Y के कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिफाइन हो रहे हैं। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ ये 3 नोड है, नोड 3 पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे U3, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे V3। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारा कोई पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम उसको राइट वर्ड समझेंगे, यानी पॉजिटिव एक्स के अलाउंग समझेंगे, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो हम उसको लेफ्ट वर्ड समझेंगे। और इसी तरह सेम गोज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। अगर यहाँ पे V3 वर्टिकल डायरेक्शन में, V3 का मतलब है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन एट नोड 3। ओके, सो अगर वो पॉजिटिव आंसर आता है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है यानी अपवर्ड है, और नेगेटिव आंसर आएगा तो हम इसको डाउनवर्ड समझेंगे यानी नेगेटिव वाई की तरफ समझेंगे। ये भी हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हमें डिफाइन करके दे रहा है। ये हमने सारा डेटा रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमारा कंप्यूटेशंस का है। तो कंप्यूटेशंस हमने इस तरह से करनी है कि वी फर्स्ट नीड टू वर्क आउट फॉर ईच मेंबर। आपको पता है हमने बीटा एक्स और बीटा वाई ये हम कैलकुलेट करते थे, यू रिमेम्बर दैट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया है कि ये कैसे कैलकुलेट होना है। लेकिन अभी आज हम यस। सिर्फ उसको एक सिस्टमेटिक वे में करने जा रहे हैं, राइट। ओके, गिव मी अ मिनट।
सर जी सर ये जी यहाँ जी। पे नोट 2 पे y की वैल्यू 30 नहीं आएगी? नोट 2 पे y 30। अच्छा मैं देखता हूँ। नोट 2 पे oh yeah, you're right, thank you। ओके सर। क्या नाम है आपका? मैं हसीबा। सीमा, ये थैंक यू सीमा। ओके दैट्स 30, दैट्स राइट। Now we're going to make another table. This table will be just pulling the data from the already built table. So whatever tables we have built, they are sort of our input tables। यानी ये आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मेरे नोड्स कौन कौन से हैं, मेरे नोड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और मेरे मेंबर्स जो हैं वो किन किन नोड्स के बीच में लाई करते हैं, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव नोड्स क्या हैं, और मेरे लोड्स किधर किधर लग रहे हैं, किन किन नोड्स पे, और एक्स में कितना है हर नोड पे, वाई पे कितना लोड है। और फिर उसके बाद आपको अपने कॉन्स्ट्रेंट्स उसको बताने पड़ेंगे कि आपको किस किस नोड पे आपने क्या क्या डिस्प्लेसमेंट को, कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रेन किया हुआ है। ये हमारा इनपुट डाटा है टोटल। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम को, ट्रस्ट को मॉडल करेंगे, एग्जैक्ट सेम डाटा वो आपसे पूछेगा कि आपके नोड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और आपके मेंबर्स कैसे उनके अंदर कनेक्टेड हैं। और नॉर्मली ये डेटा वो आपसे इकट्ठे ही ले लेता है जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं ट्रस्ट को। और आपसे वो लोड्स पूछे, लोड्स आपको बताने पड़ेंगे उस पे, और आपको अपने कॉन्स्टेंट्स बताने पड़ेंगे। ये हम अब खुद खुद से करना सीख रहे हैं कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन खुद प्रोसेस करनी हो तो हम किस प्रोसेस, इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो ये हमारा इनपुट डाटा था। अब मैं इसमें से आपको लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट टेबल पे, जिसके अंदर हम इसी को एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ये जो टेबल हमने यहाँ पे बना लिया था, इसी टेबल को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इसमें खुद एक टेबल अच्छी तरह से कोई इसमें डाटा को मैं एंटर कर सकता, थोड़ा सा मेरे हाथ से लाइनें सीधी नहीं लग रही स्क्रीन पे, लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। One, I'm just trying to figure out if I can actually work out मैं कितनी रोज डाल दूँ। I need maybe 13 rows and members 9 है, so total would be, let me see अगर ये कुछ इस तरह का इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन अब ये थोड़ा छोटा है। I'm not sure if I can pull this. Oh, I can actually. But the problem is कि अगर मैं किसी एक्सेल फाइल से ना लेके आ रहा हूँ, गिव मी सम टाइम।
मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे ताकि okay, I think this should be a good idea to work on this. Okay, so first हमारे पास यहाँ पे है members. We got members here. Members 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हर मेंबर का एक नेगेटिव नोड है और एक पॉजिटिव नोड है, राइट? n नेगेटिव और n पॉजिटिव, राइट? नोड पूरे ही लिख देते हैं। नेगेटिव नोड ये मैं जस्ट यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, राइट? ये पहले ही हमें पता है कि हमने कौन कौन सी ये इनपुट डाटा का पार्ट था, राइट? लेकिन हम दोबारा यहाँ पे ये एंटर कर लेंगे। ओके, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 के लिए 6 1 7 के लिए 1 4 8 के लिए 2 5 9 के लिए 3 6। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है ये जो हमारे दो नोड्स है ना, हर मेंबर के ऐसे ये दो नोड्स है ना, और अगर हम हर नोड को देखें तो हर नोड का एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है, राइट? सो यहाँ पर हम उनके जो x और y कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, राइट? x का x ऑफ द नेगेटिव कोऑर्डिनेट एंड y ऑफ द नेगेटिव कोऑर्डिनेट, इसी तरह x of the positive coordinate and y of the positive coordinate। बात समझ आ गई बेटा? मैं अभी अच्छा ये सारा कुछ फीट में होगा ना, फीट में, ये वैसे फीट मैंने नीचे लिखना था लेकिन अब मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट मेंबर इज बिटवीन नेगेटिव नोड 1 एंड पॉजिटिव नोड 2। हम यहाँ पे क्या लिखे आएंगे? नेगेटिव नोड का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकते हैं नेगेटिव मेंबर 1 का जो नेगेटिव नोड है, जो कि इस केस में नोड 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इधर देखना था कि नेगेटिव नोड इसका नोड 1 है, तो आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे कि नोड 1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, राइट? यस सर, 0 0 है। 0 यस सर। 0। और इसी नोड 1 का y कोऑर्डिनेट क्या है? 10। 10। 10। तो मैंने 0 10 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस सर। यस। अब मैं जा रहा हूँ और इसी मेंबर के पॉजिटिव नोड के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, जो कि इस केस में इसका पॉजिटिव नोड कौन सा है? 2। सो 2 का एक्स कोऑर्डिनेट में इस टेबल में देखूंगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट 30। तो बस मैंने 0 और 30 वहां से उठा लिया। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? Now, you need to fill Yes. this up for the rest of the members. So let's just try to quickly fill this up. Member 2 का नेगेटिव नोड 2 है, so नेगेटिव नोड 2 है तो नोड 2 के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए x और y। एग्री? 0 0 and 30। 0 and 30। और नोड अगला नोड इसका 3 है, पॉजिटिव नोड, तो 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y? 22 20 and 45, right? That's Yes, right. sir. Yeah. Okay, for this one you need to pull the coordinates of 3, Yes, sir. 22 22 and 45 45। इसके लिए फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए 44 और 30। 30। फिफ्थ, अच्छा नेक्स्ट इज द सेम रिपीटेड हियर 44 और 30। फिफ्थ के हैं 44 और 10। 10। यस, Yes, sir. यहाँ पे फिर फिफ्थ के चाहिए 44 10 और सिक्स्थ के हैं 22 0। दैट्स And राइट। 0। Yes, sir. अब फिर हमें 6 की चाहिए 22 0 And 0। और 1 के 0 क्या and कोऑर्डिनेट्स हैं? 0 10, 0 राइट? and 10। Yes, sir. ओके, 7 के क्या कोऑर्डिनेट, सॉरी नॉट 7, फर्स्ट फिर आ गया 0 10 0 10 और फोर्थ के हैं 44 44 and और 30, राइट? Yes, अच्छा sir. 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे?
0, 30, 0 and 30. Yes, sir. yes, 0, 30 और 5 is 22 and 0. 44, 44 and 10. 44 and 10, Yes, right? sir. Okay, third sir. के थे 22, 45, yes, Yes, sir. Yes, sir. 22, Yes, sir. 45, 6 And के हैं 45 22 0. and 0. and 0. अच्छा, ये आगे एंड में जाके मैं आपको एक्सेल की ऑटोमेशन इसकी बताऊंगा। एक्सेल में हमने जो शुरू में सॉरी इनपुट डिस्कस किए, आप तो सिर्फ वो इनपुट्स एक दफा डालने होंगे, उसके बाद आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं? या वी लुकअप का फंक्शन भी यूज हो सकता है, या इंडेक्स का फंक्शन और मैच का फंक्शन भी आप कंबाइन करके डाल सकते हैं। यानी हम एक्सेल को ये क्या, जैसे हमने मैनुअली किया ना, हम मैनुअली क्या कर रहे थे, हर दफा हम इधर नोट का नंबर देखते थे, फिर ऊपर जाते थे और उसके कोऑर्डिनेट्स उठाते थे, यही करते थे ना। Yes, sir. तो हम ये काम एक्सेल से ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि आप खुद एक्सेल को हम कहें कि आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट किधर लिखे हुए हैं? इधर लिखे हुए हैं ना सारे नोड्स के। तो हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, वहां पे देखना कि मिसाल के तौर पे इसकी बात कर देते हैं। ये जो हमने उठाया है 22 को, 22 कैसे उठाया हमने कहा नोड 3 पे जाके यहाँ से उठाना है। तो हम एक्सेल के अंदर ये काम कर सकते हैं कि हम उसको कहें कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, उसको इसमें पहले ढूंढो कि वो किधर लिखा हुआ है। जब वो आपको मिल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वाली वैल्यू उठा लेना। दिस इज समथिंग वी कैन टेल एक्सेल टू डू। तो ये काम जो अभी हमने मैनुअली किया है, दिस इज प्रोग्रामेबल। ओके, वो मैं आपको बाद में अभी एंड में बताता हूँ कि आपने ये कैसे प्रोग्राम करना है। अगर बीच में अभी मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आपको लेके जाऊंगा ना, तो फिर आपको जो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपकी टूट जाएगी, फिर आपको बिट्स को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो विल डू द प्रोग्रामिंग पार्ट आखिर में, और अभी हम प्रोसेस को समझ रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई कोऑर्डिनेट्स लेके आने की। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट हम इसको कहते हैं सपोर्टिंग डेटा, सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल्स का मतलब होता है वो आप ना भी बनाते तो आप फिर भी काम कर सकते थे, लेकिन उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या मतलब? हमें आगे जाके बीटा एक्स, बीटा वाई और लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम डेटा को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? हम यहाँ पर एक कॉलम बना रहे हैं, उसका नाम हम दे रहे हैं डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या है? हम हर मेंबर के दो नोड्स हैं, यस, नोड नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों नोड्स के एक्स और वाई हमारे पास मौजूद हैं, राइट। जैसे इस केस में 0, 10 और 0, 30। अब यहाँ तक आप ऑन बोर्ड है बेटा? डी एक्स का मतलब है कि दोनों नोड्स के एक्स के बीच में फर्क, यानी एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के बीच में कितना फर्क है। दोनों नोड्स है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि नोड 1 और 2 है, जैसे ये एक मेंबर हो ना, जैसे ये आपको मैं अभी जनरल एक मेंबर ऐसे दिखाऊं जिसका ये नेगेटिव नोड है और ये उसका पॉजिटिव नोड है। तो एक आपको इसके कोऑर्डिनेट्स और एक और लेट्स से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, जिसको आपने एक्स नेगेटिव कहा हुआ है, और इसका आपको इस मेंबर का आपको इसका भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है, जिसको आपने एक्स पॉजिटिव कहा हुआ है। तो हम ये चीज फाइंड करने जा रहे हैं, ये डिफरेंस बिटवीन एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ये इसको हम डी एक्स कह रहे हैं। बात समझ आ गई बेटा? Yes, sir. तो basically this dx is equal to x positive। अगर आप इसकी यहीं पे इक्वेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x पॉजिटिव माइनस x नेगेटिव, राइट। सो अब एक्सेल में इसको प्रोग्राम करना बहुत आसान है कि आप कहें कि हर दफा x पॉजिटिव और x नेगेटिव के बीच में मुझे डिफरेंस बताते जाओ। सो इस केस में व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए यहाँ पे? It will be equal to this 0 minus Yes, sir. this 0, right? Ji. Yes, Equal sir. to 0। तो आंसर यहाँ पे 0. 0 आ गया। Ji. इसी तरह हमने यहाँ पे dy को कैलकुलेट करना है, और dy कैसे कैलकुलेट होगा? y ऑफ द पॉजिटिव माइनस y ऑफ द नेगेटिव नोड, राइट। Yes, Yes, sir. sir.
So y positive is 30, y minus negative 10, is 10. So you get 20. 20. 20. तो ये आपको मैंने एक सेल में ना सिर्फ फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाया है, बाकी मैं अब जस्ट हम फिल करने जा रहे हैं। अब आप मुझे डिफरेंस बताएं नेक्स्ट मेंबर के लिए। 22. 22 minus this number, 22 minus 0, right? Yes, sir. Yes, sir. Hence Yes, sir. 22. 20. ठीक हो गया? 15. Next, Yes, Yes, sir. sir. Next 45 15. minus 30. 15. 80. 30. 15. 15. Okay, next. 22. 22. 44. 44 22. minus 22, 22. 22. 22, and then this would be minus 50. Minus 15. Minus 15. minus 50. Okay, 0. next, 0. 0. 0. Minus. Yes, sir. Minus Yes. 20. Okay, 0 and minus 20, you're right. Next one, ये वाला 10. Minus 22 22. Minus 22. Minus 22. Minus 22 and minus 10. minus 22 and Minus minus 10. 10. Okay, 22 and Ma- so 0 minus 22. Minus, 20. yes, yes. Minus 22 and minus 10. 22 and 10 minus 0. 10. Yes, sir. Positive 10. Positive 10, 10. sir. Yes, Okay, sir. next is 44 minus 0. 44. 44. 30 And minus 20. 10 44. is 20. 20 is Next is 44 minus 0 again 44. 44 and minus 20. and minus 20. 20. Next is 0. 0. 0 And and 45. Minus 45. minus 45. ये एक्सेल में तो ज़्यादा आराम से हो जाएगा, जस्ट आपको अभी यहाँ इधर भी वैसे आराम से ही होता है, लेकिन आपको बार बार वैल्यूज देखनी पड़ती हैं। इधर आपको एक्सेल में करेंगे तो आपको एक वैल्यू करके आप ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको dx और dy आ गए। अब आप लेंथ ऑफ द मेंबर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द मेंबर कैसे होगा? इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट? ये तो आपको पता है ना, पाइथागोरस Yes, थ्योरम हम sir. अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका dy है, तो ये लेंथ ऑफ द मेंबर है इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अगेन अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो आपको एक फार्मूला लगाना है और नीचे ड्रैग कर देना है, राइट? सो आई एम गोइंग टू ओके, सो एक आप करके दें मुझे जरा आप। 0 plus 20 square Sir, under root, 20. so that will be 20. अच्छा, आप sir, यहाँ पे 20. फार्मूले बेशक लगा के कर लें, लेकिन एक सैनिटी चेक हम बोलते हैं ना कि आपकी वैल्यू सेंस बना रही है या नहीं बना रही, या ये हमें पहले ही पता था। डायग्राम को देखें, 20 फुट लंबा मेंबर है, यस। तो यहाँ पर अगर आपका Yes. आंसर, ये जो आंसर आप निकाल रहे हैं ना, ये आप ग्राफिक्सली नहीं निकाल रहे हैं, ये आपने एक दफा नोड्स के कोऑर्डिनेट्स डाले थे और मेंबर को आपने बता दिया था कि हर मेंबर कौन कौन से नोड्स के बीच में है, और अब आपका एनालिटिकल काम है, इक्वेशन से कैलकुलेट हो रहा है लेंथ। तो इक्वेशन से जब आंसर आ रहा हो तो फिर बाज़ औक़ात आपको फार्मूले में गलती आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि आप एक दफ़ा खुद मेंबर पे ग्राफ पे उसको वैल्यू डायग्राम पे जाके देखें कि ये 20 फुट मैंने कैलकुलेट कर दिया, उधर वाकई था भी सही कुछ, या कोई सेंस बनती है इसकी या नहीं बनती, राइट? ओके, नेक्स्ट इज 20.6. सो नेक्स्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये मैं एक आपके लिए इधर इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। 22 स्क्वायर प्लस Plus 15 स्क्वायर, 15. ओके, इक्वल टू, ये आ रहा है 26. ऑलमोस्ट 26.627 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। सो वी वुड बी राइटिंग डाउन 26.63। चलें, आप मैनुअल काम अगर कर रहे हो तो फिर आपको बेसिक 2 डेसिमल प्लेसेस एनफ है। 26.63, राइट? व्हाट्स नेक्स्ट? वी नीड टू जस्ट फिल दिस अप, ठीक है? आप मुझे बताते जाएं। नेक्स्ट का भी यही होगा क्योंकि जस्ट साइन का फर्क है, Yes, तो वो sir. तो वैसे ही डिसॉल्व हो जाता है। 26.63 Yes, और अगले का 20 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 20. कुछ Yes, sir. तो बगैर कैलकुलेशन के भी आपको समझ आ जाती है। 22 और 10 को आप
चलें करके देखें 22 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 24.16 24.17 लिख देते हैं, चलिए 66 24.17 लिख दिए। अच्छा ये 22 ये भी 10 फिर वही उसी तरह से आ Yes, sir, जाएंगे। same. 24.17. ओके 44 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 48.3 8 point कुछ 48.3 48.3. ओके 48.33 इसका same next goes one with this one 48.3 48.3. this one should be 45 yes Yes, sir. yes sir okay so we're done with the lengths as well now. Next is calculating the beta x and beta y. Beta x and beta y. ये क्या है? Direction cosines है. Right? Beta x का मतलब था cos of the angle with x axis. Beta y का मतलब था cos of the angle with y axis. यानी cos theta x और cos theta y. Anyways, so beta x हम कैसे calculate कर सकते हैं? dx over L करके. Yes, dx over L, dx over L, right? For each member. Yes, sir. Beta x क्या है? अगर ये उसके x axis के साथ एंगल है थीटा x, सर ये एंगल को यूज करके I'm sorry, कि बेटा आप मुझे कुछ कह रहे हो, क्या कर रहे हो? Okay, I'm assuming आप नहीं मुझे कुछ कह रहे थे. Okay, so थीटा x अगर आपको पता है तो बीटा x कैसे कैलकुलेशन हो सकती है? ये जो बेस आ गई आपके पास dx डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर, यस. और बीटा y क्या चीज है? y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये मेंबर, उसका अगर आप dy cos over L. लेंगे तो Yes. दैट विल बी Beta dy. y. अब आपका बेस जो है वो चेंज है क्योंकि एंगल आपने आप कोई और एंगल ले रहे हैं, आप dy बाय l. सो बीटा x एंड बीटा y. अब एक्सेल में अगेन इट्स जस्ट राइटिंग द फार्मूला एंड ड्रैगिंग इट डाउन. नो मेंबर, अभी 100 मेंबर 100 मेंबर का ट्रस्ट हो या 3 मेंबर्स का हो, आपको ऑलमोस्ट उतनी एफर्ट लगती है. बट एनीवेज फॉर नाउ we're doing it manually. So beta x equals to dx is 0 and L is 20. So it is equal to 0 over 20 equal to True. 0, right? और Yes, beta sir. y इस केस में कितना होगा? Beta y would 1 be dy 1. over L. So 20 over 20 21. L by 20 equal to plus 1. I just want to write plus 1 to ensure that you take care of the sign, right? Anyways, next member. dx is 22. Yes, 22. And length is 22. 26.63, right? इसके अंदर Yes, sir. क्या था मेरे पास? 0.83 आ रहा है 0.83 आ रहा है? 3 yes sir yes sir Somebody can confirm the values. 22 Yes, sir. by 26.63. Yes, 0.83. Perfect. Now we move on to the next one, which is 20. Okay, what's that? 15 over 0.5 0.56. 0.5 0.56. 6 Okay. Next. again 0.8 सर आगे भी वही है 0.83 इसका भी यही आएगा 0.83. yes sir yes sir Yes, sir. sir और इसका? सर इसका भी -0.56. -0.5 आएगा हाँ, इसमें सिर्फ वो -15 है ना, तो आंसर जो है Yes, वो माइनस में चेंज हो जाएगा. Minus. माइनस Yes, sir. 0.56 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. 0. 0 0 20 0 20 और -1. 1 -1 minus 20 because dy is minus 20, right? L तो पॉजिटिव ही Minus. रहेगा लेकिन yes sir dy could be negative. yeah So minus 1. Make sure you, that's why I put a plus sign here to reinforce that you could get a negative sign if there was a negative sign for the dx and dy, right? What's next? yes sir 22 over 0.91 Come on, it's not 20, it's yes sir minus 22. 0.9 It's Yes, minus sir. 22. 0.91. minus 0.5 Minus 0.91. Minus 0.91. What's next?
minus minus 0.41. 0.4. Minus 0.41. Okay, One. what's next? Minus Minus 0.91 Fine. 91, same thing. Okay, what's next? 0.4. or positive 0.41. 0.41. Oh, okay, plus 0.41. What's next? 0.91. 0.91. And 0.41. 0.41. 0.41. Okay. For the eighth member, same things. 0.9 Yes, sir. Yes, sir. Minus 0.9. 0.91. and minus No, 0.4. positive 0.91 and minus 0.41. Yeah, that's right. Okay, Yes, sir. last one would be Zero. 0 and Minus Minus 1. 1. Okay, we did the direction cosines. Now it's time to go and work out the B prime matrix. Okay. The B prime matrix is going to, let me bring in another table here. I want to be, where should I bring my table? I think I can move further right. I just want to make sure I can see this table while I'm working with it. Okay, लेकिन इतनी पेज की width नहीं है मेरे पास. I can actually copy this wherever I need to. And I can work with my B prime matrix now. So now we're going to develop our B prime matrix. Sorry, it's B prime matrix. This B prime matrix will consist of, okay, let me write down. I want to bring another table here for you. This time it would be, okay. Okay, so this is my table for B prime matrix. I want to actually write down the rows here. Row 1x, which means node 1 x direction, node 1 y direction, node 1, sorry, next will be node 2 x direction, node 2 y direction, node 3 x, node 3 y, and then we have
for x, for y, 5x, 5y, 6x, and 6y. We have got 6 nodes, okay? And each one has 2 directions, x and y. Okay. Next, we write down, okay, we just want to clearly note down the 2 components that we see here. I mean, 2, ये मैंने 1x लिखा है ना, तो हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके डिग्री ऑफ फ्रीडम में, पता नहीं आपने पहले लफ्ज में से सुना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कौन सी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, राइट? यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, आपके लिए फिलहाल इतना ही है कि बस इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, राइट? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सो नोड 1 एक्स, यानी इसका मतलब ये इधर ये जो रो है ये नोड 1 से रिलेटेड है, और नोड 1 में जो यू हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उससे रिलेटेड है, ओके? जैसे आप जॉइंट मेथड, सॉरी, जब आप नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते थे और बाद में मैट्रिक्स बिल्ड करते थे, तो आपके पास यही होता था ना, हर नोड के एक्स और वाई डायरेक्शंस के लिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो एक्स और वाई डायरेक्शन आप हर नोड के लिए रिकॉर्ड करते थे। तो इसमें बस मैं उसी को यहाँ पे कर रहा हूँ यू, और इसको मैं कहूँगा बी, ठीक है? यानी डिस्प्लेसमेंट के केस में एक्स यू का मतलब होता है, यानी मतलब तो नहीं, मैं इसको कहता हूँ, मैं सिर्फ ये नोटेशन है मेरी, मैं इसको यूज कर रहा हूँ टू डिस्क्राइब सब। यू का मतलब है मेरे, यू जब भी मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वी का मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है? सो ये हो जाएगा 2u और 2v, 3u 3v। ये लिखना कोई इतना जरूरी नहीं है जो मैं भी लिख रहा हूँ, जस्ट फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको वैसे भी समझ आ जाएगी जब आप प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास कॉलम्स में असल में तो ये तो बेसिकली आप समझ लें कि हमने वैल्यूज जो डालनी है ना, उसके लिए हमने हेडर्स टाइप रख दिए कि ताकि हम डिफाइन कर सकें हमने वैल्यूज किधर किधर डालनी है। असल में अब यहाँ पे हमने F1 मेंबर, F4, F2, F3, F4, F5, F6, 9 मेंबर्स है ना, F7, F8 और F9। अच्छा, ये एक शायद एक्स्ट्रा सेल आ गया, चले कोई बात नहीं। ओके, राइट, आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड। F9 तक हमने लिख दिया, कुछ मिस तो नहीं किया। ओके, राइट। अब हमने एंटर क्या करना है, इसका जनरल जो फॉर्मेट है ना वो ये है, मैं आपके सामने अभी ये लेके आता हूँ। जो बी प्राइम को बिल्ड करने का जो तरीका है वो मैं आपको अभी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। जनरली तरीका ये है इसका, किसी मतलब आप नोड, क्या मतलब, फर्स्ट जो मेंबर है, मेंबर 1 में, मेंबर 1 किन किन नोड्स के साथ कनेक्टेड है, यानी किन किन नोड्स के बीच में है, ये हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ, इसीलिए रिकॉर्ड किया था 1 और 2 के बीच में, राइट? नेगेटिव नोड और पॉजिटिव नोड इसके 1 और 2 है। तो इस बी प्राइम मैट्रिक्स में 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी जगह हैं? नोड 1 की, F1 के कॉलम की बात कर रहा हूँ, राइट? F1 में एक ये जगह नोड 1 की है, नोड 1 की दो हमारे पास रोज होंगे ना, एक x के लिए और एक y के लिए, राइट? और दूसरी इसकी दूसरी प्लेस होल्डर इसका किधर है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ पे हमने ये जो मैंने ऊपर स्काई ब्लू कलर में शेड किया है, ये इसका नेगेटिव नोड है, राइट? नंबर 1 का ये नेगेटिव नोड है, मैं यहाँ पे आपको फिलहाल लिख रहा हूँ, बाद में बता दूंगा। ये इसका, सॉरी छोटा है,
नेगेटिव नोड है इसका और ये पॉजिटिव नोड था। बस हमने ये पहले आइडेंटिफाई कर दिया, राइट? बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आपने क्या करना है कि जो उसका नेगेटिव नोड है उधर आपने डालनी है वैल्यू नेगेटिव नोड वाली जगह पे आपने डालनी है माइनस बीटा 1, ये एक्स वाली वैल्यू। ऊपर हमने अगर आप देखें तो वैल्यूज जो कैलकुलेट किए बीटा एक्स और बीटा वाई लिखी हुई है हर नोड के लिए, रेस राइट? तो ये जो वैल्यू है ये नोड 1 की बीटा एक्स है, इसको मैं कह रहा हूँ बीटा 1x, राइट? Yes, sir. और इसको मैं कह रहा हूँ इस सॉरी एक सेकेंड में बीटा 1 हमने यहाँ पे वैल्यू डालनी है फॉर मेंबर 1, चूंकि 1 और 2 के बीच में था तो 1 के लिए हमने दोनों वैल्यूज माइनस के साथ पुट करनी है, बीटा एक्स भी और बीटा वाई भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो वैल्यूज लेके आऊंगा बीटा एक्स और बीटा वाई वो दोनों माइनस के साथ लेके आऊंगा, राइट? इसमें ये नहीं, सॉरी, बीटा बीटा जो प्रॉपर्टी है नोड की प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी मैं आपको कंफ्यूज ना कर दूं। बीटा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर, राइट? मेंबर 1 के हमारे पास बीटा 1, चलो मैं आपको इधर लिख देता हूँ फॉर योर आपको कंफ्यूज करने के बदले आपकी आसानी क्या रहोगे। F1 के दो हमारे पास बीटाज हैं, राइट? बीटा एक्स और बीटा वाई, राइट? मेंबर 1 के दो बीटाज हैं ना, बीटा एक्स और बीटा वाई, एग्री? Yes, sir. बीटा एक्स इसका है, लिख देते हैं हम यहाँ पे वैल्यू 0 और बीटा वाई है इसका 1, राइट? हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज के साइन बदल के डालने हैं इस जगह पे। सर जी, ये हम इसलिए नेगेटिव साइड लगा रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव नोट पे मतलब नेगेटिव नोट की अभी लिख रहे हैं वैल्यूज, या फिर जस्ट इसलिए मतलब अगर वो मेंबर 2 से 1 की तरफ होता तो फिर भी 1 वाले के साथ नेगेटिव आता या फिर पॉजिटिव आता? नहीं मतलब हमें पी इससे एक्स और पी वाई हाँ बीटा ये वाई। नेगेटिव, ये जिसका नोड नेगेटिव है इसलिए माइनस लिख रहे हैं इसके साथ। ओके सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूजन होगी ये दोबारा से सुन लीजिएगा, ये समझे मैंने अभी कुछ नहीं बताया और अब मैं आपको बताने लगा हूँ, राइट? ये F1 मेंबर है, इसके एक बीटा एक्स 0 है और बीटा वाई इसका 1 है। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमने यहाँ पे नोट किए हुए थे 0 और 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट? 0 1, ये एक पेयर है आपके पास। यहाँ पर आपने जो ये इधर जो है ना ये इसका नेगेटिव नोड था, हमने ये डिस्कस किया। ये जो 1 नोड है इसका ये नेगेटिव नोड है इसका, यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसका नेगेटिव नोड वाला एरिया है, राइट? F1 के लिए। यस सर। तो इस नेगेटिव नोड के केस में मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है दोनों की, 0 और 1 दोनों वैल्यूज इधर 0 और 1 डाल दी है, लेकिन साइन बदल के। यानी इधर मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स बीटा एक्स और इधर मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स बीटा वाई। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इस केस में हमारे लिए इसकी वैल्यू बन जाएगी, चलो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ी जगह बना के साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपको पहली वैल्यू में पता हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ मैंने लिखना था माइनस बीटा एक्स इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू 0, और इधर मैंने लिखना था माइनस बीटा वाई इक्वल टू माइनस 1, और ये मेरा -1 आंसर आ गया। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैं इसी मेंबर F1 का नेगेटिव नोड मुझे डील कर दिया मैंने, वहां मैंने एंट्री कर दी है। अब मैंने
इसी मैट्रिक्स में और कहाँ पे, इसी कॉलम में और किधर एंट्री करनी है, जो जहाँ इसका पॉजिटिव नोड है, और इसका पॉजिटिव नोड क्या है 2। तो 2 2 वाली नोड पे हमने x वाली जगह पे हमने बीटा x लिखना है, y वाली जगह पे बीटा y लिखना है, राइट? यस सर So we are simply going to put here beta x, ठीक है, with a plus sign equal to 0 और plus beta y equal to 1। ठीक हो गया? क्या आपको समझ आ गई बेटा? Yes, अच्छा, sir. Yes, अगला मेंबर को भी हम अभी करेंगे तो आपको आइडिया। अच्छा, बाकी बाकी सेल्स के बारे में क्या है? दे विल बी 0, तो मैं उनको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ ताकि आप हमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है? ज़ाहिर है सेल में ओके जब सर आप सेल करेंगे, इसको जब आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो वो उसका मतलब यही लेगा कि आप यहाँ पे 0 वैल्यू है। ठीक हो गया? अब आप मुझे यस बताएं सर F2 मेंबर किन दो नोड्स के बीच में है? 2 and 3 2 और 3। तो 2 जो लोकेशन है मेरी यहाँ पर, यानी ये वाली जो लोकेशन है, इधर मैं नेगेटिव के साथ लिखूंगा Negative. उसको। Yes, यस sir. सर इसी के बीटा, इस मेंबर के बीटा को बेशक आप यहाँ पे रिकॉल करके पहले लिख लें। F2 के मेंबर 2 के बीटा 0.83 0.56 थे। Yes, sir. मैं आपको इधर लिख देता हूँ सर कि फिर जी हमने इधर वहां पे क्यों 0 और 1 लिखा हुआ है? जो F1 में 2 की जगह आए थे वो वहां पे क्यों 0 1 लिखे सेकंड नोट के सामने? उसकी member forces है. दोबारा पूछें बेटा, मुझे समझ नहीं आई। सर मतलब जो अगर इसकी जो नोट 2 है उसके बीटा x और बीटा y 0 और 8 पॉइंट समथिंग है, तो फिर हमने जो फर्स्ट रो में लिखा है F1 के सामने, वो 2 वाली नोट के सामने जो कोरस्पॉन्डिंग लिखा है वो 0 और 1 क्यों लिखा है सेकंड नोट के लिए? जी जी, मैं आपको वही जो मैंने, सॉरी आपको मैंने ही कंफ्यूज किया शुरू में। बीटा एक्स और बीटा वाई ये नोड की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मेंबर की प्रॉपर्टीज है, राइट? दे बिलोंग टू द मेंबर्स, राइट? पहली चीज ये क्लियर कर दें। इसलिए मैं अब आपको ऊपर भी लिख के दे रहा हूँ, F2 के साथ मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। बीटा एक्स और बीटा वाई एक मेंबर की ओरिएंटेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? मतलब सर एक मेंबर के लिए वो उसके नेगेटिव के सामने वाला भी और पॉजिटिव के सामने वाली वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होगा? यस। जो मैं आपको अभी अभी करूंगा आपके सामने, मेंबर 2 के लिए होपफुली क्लियर हो जाएगा, राइट? मेंबर 2 ओके के लिए सर मैं करने जा रहा हूं, तो मैंने इस टेबल में देखा कि मेंबर 2 के बीटा एक्स और बीटा वाई ये है, 0.83 उसका बीटा एक्स है और बीटा वाई इसका 0.56 है, राइट? ओके सर सो मैंने यहां से उठा के वैल्यू देखी कि बीटा एक्स इसका 0.83 है और बीटा वाई इसका 0 पॉइंट क्या था, 56। 5, 6. 5.56। ठीक है, ये मैं नोट, ये मेंबर 2 के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा, मेंबर 2 जो है उसको देखें किधर किधर लाई करता है, बिटवीन विच मेंबर एंड विच मेंबर? 2 and 3 2, 3. नोट। सॉरी, नॉट मेंबर, किस किस नोड के बीच में, नेगेटिव उसका 2 कौन सा है and और 3. पॉजिटिव उसका कौन सा है? अच्छा, 2 और 3 के बीच में, तो मैं कलर Yes, sir. कोडिंग आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें कि हमने किधर क्या डालनी वाली। आपको इधर जो नजर आ रहा है ना, ये पूरा वेक्टर बता रहे थे, बीटा 1 वेक्टर फॉर नोड 1। तो उस वो वेक्टर से थोड़ी सी आप कंफ्यूजन हो जाती है। बीटा 1 जो है वो वेक्टर है जिसके अंदर बीटा एक्स और बीटा वाई शामिल होते हैं। तो इधर नोड 1 के साथ जब वो कहते हैं ना कि -β1, इसका मतलब ये होता है कि पूरा वेक्टर लेके आना है बीटा एक्स और बीटा वाई का। यस सर। सर मतलब जी ये जो बीटा एक्स और बीटा वाई ये एक मेंबर के हिसाब से, और हमने ऊपर मेंबर का देखना है कि 1 के रिस्पॉन्डिंग 0 और 1 था, तो इसलिए उसकी पॉजिटिव वाले नोड में पॉजिटिव साइन के साथ वही लगा दिया और यस नेगेटिव वाले में यस, नेगेटिव साइन के साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही किया, ओके यस। सर। सो नाउ लेट्स ट्राई ओके टू सर। इम्प्लीमेंट देम फॉर मेंबर 2 के लिए हम इधर हमने साइन बदल के लिखना है बीटा एक्स और बीटा वाई को, और इधर एज इज लिखना है। Yes, sir. सो क्या यस क्या सर। लिखेंगे यहाँ पे? Minus माइनस 0. 0.83 -0.83
और इधर माइनस minus 0.56 0.56 राइट, और और इधर यहाँ भी पॉजिटिव में 0.83 0.83 और 0.56 0.56 तो अब आपको प्रोसेस समझ आ गया। यस सर अच्छा, अब हम F3 पे चलते हैं। बाकी 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 वैल्यूज का क्या बनेगा? दे विल बी 0 0 0 0 राइट। अब आ जाए F3 पे। F3 के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से बस पढ़ लेते हैं, 0.83 और माइनस 0.5। अब जब मैनुअली काम कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस में बाजू का कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं कहूंगा नेगेटिव वाली जगह पे साइन बदल के करना है और उधर एज इज करना है। अच्छा, आसान तरीका ये हो सकता है कि आप पहले पॉजिटिव में वैल्यूज एंटर कर दें यहाँ से देख के, और नेगेटिव में बाद में डाल दें साइन बदल के, ठीक है। Yes, sir. सो नोड 3 का पॉजिटिव नोड कौन सा था? 4। तो मैं फोर्थ वाली लोकेशन पे जाऊंगा और 0.83 और माइनस 0.56 एंटर कर दूंगा, क्योंकि वहां तो साइन नहीं बदलने, वहां तो एज इज डालना है ना। yes तो sir फोर्थ थर्ड मेंबर के लिए मैं फोर्थ वाले नोड पे जाऊंगा, 0.83 और माइनस 0.56। ये थर्ड मेंबर है, F3 yes का sir कॉलम है। इसके yes Yes, अंदर sir. मैंने जाना है, कहाँ जाना है? फोर्थ नोड पे Fourth जाना है। वाले। फोर्थ नोड पे Yes, sir. जाके मैं लिखूंगा 0.83 83 और and minus minus 5.6 माइनस 0.56 minus 0.56। 0.56 yes sir ये इसकी बीटा यानी प्लस Positive जो में। बीटा थी ना वो Yes, मैंने sir, लिख दी, प्लस positive. बीटा Yes, sir. सीरीज लिख दी है, राइट। अब ऊपर साइन और चेंज Yes, sir. करना ऊपर में साइन माइनस change कर लिखना है 0.83 minus 0.83 and 0.56 अब आपको समझ आ गई बेटा? yes yes sir sir यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन कि आपने हर मेंबर के लिए पॉजिटिव नोड वाली जगह पे विदाउट चेंजिंग एज इज आपने बीटा एक्स और बीटा वाई को लेके आ जाना है, और नेगेटिव नोड वाली जगह पे आपने साइन बदल लेने हैं बस। ओके, F4 के लिए F4 is 0 minus 1 राइट। yes लेकिन sir किधर जाना है? हमने फिफ्थ पे 5 जाके नंबर पे 0 0 minus 0 1 डाल minus देना है। 1 yes sir फिफ्थ पे जाके हमने 0 और 0 माइनस 1 0 लिख and दिया, और minus 1 ऊपर हम 0 0 1 and plus 1 1 राइट। सही किया yes हमने। sir Yes, sir. yes sir yes sir ये कौन सा था? F4 था। yes sir Yes, sir. ओके, F5 F5 की ये डायरेक्शन को साइंस तो दोनों। अच्छा, अब आप minus ये आप 0.91 लोग and याद रखें, ठीक है। मैं अब ये नहीं याद रख रहा हूँ, मैं जस्ट ये याद रख रहा हूँ कि किधर 6 नोड इसका पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यूज आपने मुझे लिखवानी है। 6 yes नोड sir में विदाउट चेंजिंग द साइन जाके लिखूंगा इसको। 6 नोड ये है, minus minus 0.91 0.91 और minus minus 0.41 0.41 राइट, और इसका दूसरा जो है वो 0.91 5 yes sir अच्छा, इसको फिफ्थ नोड को 0.59 जरा चेक कर लें। fifth 6 पॉजिटिव था, फिफ्थ नेगेटिव था। ओके, तो Yes, फिफ्थ sir. पे हम yes sir साइन बदल देंगे, 0.91 0.91 और 0.41 0.41 राइट। yes sir yes अब sir 6 मेंबर पे चले जाएं। अच्छा, Yes, ये sir. काम भी हम एक्सेल में ऑटोमेट कर सकते हैं, जो हम अभी मैनुअली जाके उठा उठा के स्कैन कर रहे हैं ना, कि किधर डालनी है वैल्यू, किधर डालनी है साइन, किधर बदलना है, किधर नहीं बदलना। दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामेबल। F6 में जाएं तो F6 One. माइनस 0.91 और 0.41। 1 और 6 में तो पहले हम 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। yes sir 1 पे Yes, sir. हमने माइनस 0.91 और 0.41 41 लिख देना है। enter करना है ये यही वाला कर रहे हैं, माइनस yes sir yes sir 0.91 और 91 0.41 0.41 0.41। और 6 ओके, यही थी वैल्यूज। और फर्स्ट Yes, और sir. 6 में हम इनकी साइंस को Change बदल कर देंगे, change कर Change देंगे कर दो. 0.91 और माइनस minus 0.41। 0.41 41 ओके, Okay, F7 पे Yes, sir. yes sir 0.91 0.41, लेकिन किधर 4 पे 4 पे yes 4 and 1 4 positive में 8 लिखा 0.91 मैंने। 91 0.41 इधर Yes, आके sir. करना टाइम चेंज 1 फर्स्ट पे में, 1 yes sir पे माइनस 0.91 माइनस minus 0.41। 0.41 yes sir और F8 के लिए
माइनस 0.91 माइनस सॉरी प्लस और माइनस के साथ जाना है 5 पे, फिफ्थ में। 5 पे, फिफ्थ पे ओके 0.91 माइनस 0.41 नेगेटिव किधर डालना है 1 2 पे 2 पे 2 पे साइन बदलने हैं हमने माइनस माइनस 0.9 0.91 और 0.41 0.41 और नाइन्थ मेंबर इज 0 माइनस 1 6 के लिए 6 पे 0 माइनस 1 और किधर बदलने 0 साइन थर्ड पे 0 थर्ड 1 0 1 right. yes sir So now we built the B prime matrix. इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स बनना था P वाला P प्राइम मैट्रिक्स। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं बना रहा हूँ P प्राइम मैट्रिक्स किप्स वाला मैट्रिक्स है। अच्छा इसमें हम अगर फिगर आउट करें ये अप्लाइड लोड है ठीक है इसमें ये रिएक्शंस शामिल नहीं है P प्राइम में बात समझ आ गई। यस सर यस या सर अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए चलो मैं फिलहाल लिख दूंगा आपके लिए बट मैं सिर्फ चले मैं आपको बताता हूँ अभी अगर आप 1 पे जाएं नोड 1 पे एक्स डायरेक्शन में देखें तो हमारे यहाँ पे रिएक्शंस है राइट। तो मैं सिर्फ इसको बस इधर लिख देता हूँ R1X ठीक है इसको मैं लिख दूँ यस सर अच्छा ये मैं यही वाला कॉलम बिल्ड कर रहा हूँ ठीक है R1Y हमें वैल्यू नहीं पता बस हमने वैल्यू ऐसे ही लिख दी R1X R1Y। अच्छा उसके बाद हम जाते हैं 2 पे 2 पे हमारे पास क्या है ये हमने पहले ही यहाँ पे नोट किया हुआ था नोडल लोड्स हमने नोट किए हुए थे राइट। तो 2 ये हम लिख यस सर देते हैं फिर हम उसके बाद रिएक्शंस भी डाल देंगे तो बस बाकी था तो 0 है ना। तो 2 पे जाके यस सर 40 और 0 हमने वैल्यू डाल देनी है 2 पे जाके 40 और 0 और फिर 3 पे जाके हमने 30 और 0 वैल्यू डालनी है एक्स डायरेक्शन में 30 वाई में 0 और हमने जहां जहां ट्रू है ना जो जो ट्रू है उनके करस्पॉन्डिंग लिखना है कि ये रिएक्शन है ये हम पहले ही लिख चुके हैं। फिफ्थ नोड पे जाके वाई में हमने लिखना है कि ये फिफ्थ नोड के वाई में लिखना है कि यहाँ पर भी एक रिएक्शन है जिसको मैं R5Y फिलहाल कह रहा हूँ ठीक है। yes sir बाकी सब क्या है 0 0 मैं उनको अब लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ डॉट्स डाल रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये मैंने लिखा नहीं बस ये जो नहीं है तो वो तो 0 ही रहेगा फिर। तो ये है हमारा P प्राइम मैट्रिक्स। अच्छा अब हमने इसमें से वो वाली रोज जो करस्पॉन्ड करते हैं टू द रिएक्शंस उनको डिलीट करना है यानी कि हमने इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे बी मैट्रिक्स बना ये बी प्राइम मैट्रिक्स था अब हमारा बी मैट्रिक्स बनने लगा है। बी मैट्रिक्स में क्या होगा हम वो वाली रोज डिलीट कर देंगे विच करस्पॉन्ड टू द रिएक्शंस कौन कौन सी वाला 1 फर्स्ट रो will be deleted second row second row will be deleted and this row now will also be deleted third task corresponding to is 5y 5y वाली जो रो है वो भी डिलीट हो delete हो जाएगी। जाएगी रिमेनिंग हमारे पास जो बच रहा है उसमें 12 थे ना टोटल ये रोज। yes sir yes sir अब हमारे पास कितने रोज रह गए 9 and 3 9 yes और sir ऑलरेडी इधर हमारे पास F1 से लेके F9 तक के कॉलम्स थे तो ये 9 बाई 9 का जो बीच में मैट्रिक्स रह गया इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं बी मैट्रिक्स बात समझ आ गई। okay sir yes इसका मतलब ये कि अगर आप बी मैट्रिक्स बना रहे होंगे अब आपको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है ना। बी no sir. मैट्रिक्स अब यहाँ से शुरू हो जाएगा yes sir यहाँ से शुरू होगा सिर्फ बीच में ये निकाल देंगे आप और ये रोज होंगी इसमें टोटल राइट। yes sir So B matrix will be a 9 by 9 matrix in this case. ये 9 by 9 का होगा और वो आपका मैट्रिक्स था
12 बाय 12 9 का। ओके, अब हमने जब बी मैट्रिक्स बना लिया और बी मैट्रिक्स जैसे, हाँ, जैसे बी मैट्रिक्स बन गया वैसे भी पी मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो मैट्रिक्स में से पी प्राइम मैट्रिक्स में से जो ये 3 कट गए ना, ये वाले, Yes, तो sir. इसके अंदर भी हमारे पास 9 ही एंट्रीज रह गई, राइट? Yes, sir. तो ये हमारा पी मैट्रिक्स रह गया अब। So now we got a B matrix of 9 by 9 and a P matrix of 9 by 1, right? Yes, sir. और अब हमारी जो इक्वेशन है वहां से अब हम मेंबर फोर्सेस फाइंड कर देंगे। हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरह की है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी मेंबर फोर्सेस फ्रॉम आवर इक्वेशन, जो कि ऐसे इस ये वाली इक्वेशन है, F इक्वल टू B इनवर्स P, राइट? ये आपको पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं ना। यस सर। Yes, sir. Yes. You know how to inverse a matrix, you know how to multiply matrices. आप इनको ऐसे करते हैं। अगर B इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि डिटरमिनेंट 0 हुआ, तो ट्रस्ट को क्या समझेंगे? अनस्टेबल सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हुआ B, राइट? और Yes. अदरवाइज Yes, ये sir. सॉल्व हो जाएगा और आप मेंबर फोर्सेस F1 से लेके F9 आपके पास आ जाएंगी, राइट? समझ आ गई बेटा? यस सर। Yes, sir. So you would now know all the member forces. How about the reactions now? अच्छा, मैं जस्ट आपके सामने इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ because I did it on Excel और I just don't want to redo it here. अच्छा चलो, मैं आपको यार Excel से ही क्यों ना, I'm gonna share my Excel with you, Excel window. Share this window, okay. अच्छा, मैं आपको बस शुरू से भी बता, ये मेरे पास इनपुट्स की मैंने शीट बनाई हुई। इनपुट्स की शीट अलग बनाने का मकसद ये था कि आपको क्लियरली पता हो कि मेरे सिस्टम में क्या क्या एंट्रीज मुझे चाहिए, राइट? क्या क्या मैं डालूंगा इसमें। जितने भी आपके ट्रस्ट के नोड्स अगर और ज्यादा हैं तो फिर आप और एंटर कर देंगे यहाँ पे। 7th नोड ऐड हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये कंप्यूटेशन वाली शीट है। इसमें हमने शुरू में वही आपका जो हमने टेबल अभी बिल्ड किया था ना पहले, जिसमें बीटा एक्स बीटा वाई एल सारा कुछ लिखा था, डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास इस तरह से बिल्ड हो जाएगा। और बी प्राइम मैट्रिक्स ये अभी जो हमने खत्म किया, जिसको ड्रॉ करके फिर हमने, ये देखो, ये सारी एंट्रीज हमने की हुई है, ठीक है? ये सारे इसके फिर फार्मूले लगाए जा सकते हैं। दिस इज ऑल प्रोग्राम, यू कैन जस्ट, आपको सिर्फ इनपुट्स बदलने एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। और उसके बाद हम इस रिड्यूस्ड सिस्टम जो है ना बना लिए, जिसमें से हमने मेट वो वाले कॉन्स्ट्रेंट जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे उनको डिलीट कर देने, जहाँ पे रिएक्शंस आने थे, राइट? ये वो सारे फ्री Yes, रोज sir. हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट? Yes, sir. ओके, सो उसके बाद आपने ये बी मैट्रिक्स था 9 बाई 9 का, ये 9 बाई 1 का पी मैट्रिक्स था, राइट? और यहाँ से आपने ये वैल्यूज फाइंड कर दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई वही फार्मूला लगा हुआ है। पहले मैंने मैट्रिक्स को इन्वर्स किया है, फिर उसके बाद मैंने उस इन्वर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है विद द पी मैट्रिक्स। सो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट, मैंने अलग से डिस्प्ले नहीं किया बी माइनस ये आ रहा है, फिर उसके बाद फर्दर यू कैन जस्ट डू इट विदाउट एक्चुअली डूइंग द अदर। मैंने एरर के लिए वो लगाया हुआ है कि अगर मेरा एरर आए तो मुझे क्या बताना है आपने, ताकि वो खाली छोड़ देगा तो पता चल जाएगा आपको कि ये मसला है यहाँ पे, ये ट्रस्ट है वो स्टेबल नहीं है। बहरहाल ये मैंने पी मैट्रिक्स यहाँ पे, ये सॉरी एफ मैट्रिक्स है, F1 से लेके F9 तक मेरे आंसर्स आ गए। और प्लस का मतलब है कि टेंशन है और माइनस का मतलब है कंप्रेशन है, राइट? ये आपको खुद, ये अगर आप एक दफा फार्मूला प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेंगे तो ये खुद ही यहाँ पे बताता जाएगा। अब उसके बाद आपके हैं रिएक्शंस को फाइंड करना। तो रिएक्शंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप दोबारा से अगर उन मैट्रिसेस को लेके जाएं यहाँ पे,
So you should be able to find those matrices. ठीक है, ये जो बी प्राइम मैट्रिक्स था ना, वहीं से अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमने D20 और L20 से लेके, यानी ये जो ये मैट्रिक्स उठा के मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, राइट। अब हमें इस मैट्रिक्स में कोई इशू नहीं है। अब हमने सिंपली ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, इससे हम ये हर रो को कैलकुलेट करते आ रहे हैं, राइट। इसको अगर आप देखें तो ये ऐसे आया है, यानी सिंपली आप दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू प्लस ये मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं, राइट। समझा रही बेटा? दोबारा बी प्राइम Yes, वाले sir. मैट्रिक्स पे आप चले जाएंगे, वहां पे आपके एफ ये जो एंट्रीज लिखी हुई है उनको आपने रेस्पेक्टिव मेंबर फोर्सेस से मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। समझ आ रही? और यू विल बी गेटिंग दीज। सर ये सब हम रिएक्शन निकालने के लिए करेंगे, बी प्राइम मैट्रिक्स हाँ, वाला। ये वाला स्टेप सिर्फ नहीं हाँ जी, लेकिन बी प्राइम तो हमारा सोर्स मैट्रिक्स है ना, उसी में से बी मैट्रिक्स बना था, तो बी प्राइम तो आपको बनाना पड़ेगा। यस सर। सो ये आपके पास रिएक्शंस आ रहे होंगे यहाँ पे, और आपने सिर्फ अब रिएक्शंस वाली वैल्यूज आपको यहाँ से उठाने की जरूरत है, बाकी वैल्यूज जो है वो आपको उठाने की जरूरत नहीं। वो आपको सिर्फ लोड चेक मिल रहा होगा, यानी कि वही जो आपके पी मैट्रिक्स की एंट्रीज थी 40, ये तो गिवन लोड थे ना, और जहाँ पे आप यानी कहीं पे लोड था कहीं पे नहीं था, कहीं ये आपको वही वैल्यूज मिल जाएंगी। सिर्फ लोड चेक की, लोड चेक का से मरा दे कि ये वही आपके पास लोड आ गया जो आपने रखा हुआ था। यानी नोड 2 पे हमारा 40 था ना एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 0 था, तो वही वाली वैल्यूज यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगी आपके पास। इट्स जस्ट अ वे टू कंफर्म दैट व्हाटएवर यू डिड इज करेक्ट। सो मेंबर फोर्सेस फाइंड करना, रिएक्शंस फाइंड करना, दिस शुड बी इजी नाउ। डिस्प्लेसमेंट्स के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट्स के लिए पहले हम ये करने जा रहे हैं कि यहां तक हमने कर लिया था बीटा वाई तक, ठीक है। हमने एल फाइंड किया था फीट में, तो हम एक और कॉलम यहाँ पे ऐड किया एल इन इंचेस करने के लिए। तो जो आंसर 20 फुट लिखा था उसको इंच में लेके जाने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये हमने इसलिए कर लिया, हमें Yes, ये sir. फोर ये अभी इस वक्त जब तक डिस्प्लेसमेंट्स पर नहीं गए थे हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट में यूनिट कंसिस्टेंसी लेके आने के लिए, क्योंकि एरिया हमारा इंच स्क्वायर में है, तो ई जो है वो किप पर स्क्वायर इंच में है, तो हम लेंथ को भी इंच में पहले से लेके जा रहे हैं, राइट। तो अब आपने हर मेंबर की लेंथ को इंच में यहाँ पे वहीं से लेके आ जाना है उसी टेबल में से, राइट। या आप खुद यहीं से अलग से लेके आना चाहें तो बैलेंस आप लिस्ट डाउन कर देंगे इसको। एक टर्म आप कैलकुलेट कर देंगे, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, एल ओवर ई ए फॉर ईच मेंबर। एल ई ए इस केस में सब मेंबर का एक जैसा है, इसलिए हमने एक ही एंट्री रखी है। अगर डिफरेंट होता तो हम यहीं पर जैसे लेंथ का कॉलम बना हुआ है इसी तरह एरिया का कॉलम बनाते हैं, और हर मेंबर का अपना जो एरिया उससे उसको यूज करते एल ओवर ई ए को कैलकुलेट करते हुए, राइट। वंस यू आर डन विद फाइंडिंग एल ओवर ई ए, उसके बाद आप एक एलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हर मेंबर में। ये मैंने क्विज में भी आपसे पूछ लिया था। अगर आपको एल ओवर ई है उसका पता है तो देन यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद द मेंबर फोर्स। अगर आप देखें तो ये मेंबर फोर्स से लिंक्ड है। कैसे? फार्मूले को बेशक आप बाद में समझ लीजिएगा, हम भी सिंपली आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने मैनुअली करना हो तो आप ऐसे कर सकते थे, एल ओवर ई ए मल्टीप्लाइड बाय फॉर मेंबर 1 उसका L over EA multiplied by force in that member, that should give you the elongation, and that elongation or shortening जो भी चीजें वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेंसाइल फोर्स, ये फोर्स पॉजिटिव होगा तो elongation भी पॉजिटिव आती जाएगी। जहाँ पे ये फोर्स नेगेटिव है तो उनकी elongation के बजाय यहाँ पे शॉर्टनिंग आती जाएगी, नेगेटिव आंसर आता जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई बेटा? Yes, sir. तो हर मेंबर की elongation आपको पता चल गई, राइट। अब आपने once you know the Sir. along
एलोंगेशन फॉर ईच मेंबर। मैं आपको इसी एक्सेल शीट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यही आपसे शेयर की हुई है स्क्रीन। सर तो एक जी मिनट, बेटा, सर एलोंगेशन का थोड़ा सा दोबारा बता दें, वो ई कैसे फाइंड करना है, हाँ, स्मॉल ई ये को। मैंने ऐसे फाइंड किया। मैंने यहाँ पे, अच्छा चलिए, अगर मैंने ये शीट अभी ये ना बनाया होता, ठीक है, तो आपको मेंबर फोर्सेस पता चल गई, राइट। ट्रस्ट के अंदर मेंबर फोर्सेस आपको पता चल गई। मैं वापस आपको यस सर। ये वाली विंडो शेयर कर रहा हूँ यार, जो मैंने यहाँ पे। अब आपको मतलब पता चल गया है कि इस मेंबर में, मैं आपको चलो एक मेंबर निकाल के दिखाता हूँ। 160.23 के इसमें फोर्स है, इस मेंबर वन में 160.23 के, ठीक है। यस सर। ये आपको पता चल गया, इसमें फोर्स आ गई 160.23 के। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप मुझे इस मेंबर में एलोंगेशन बताएं, तो एलोंगेशन के लिए हमने जनरल जो पीछे इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, जो आसान सी बन जाती है, पी एल ओवर ए ई पढ़ा था, राइट। पी इज द मैम फोर्स, पी चलो ना लिखें, एफ लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोर्स इन द मेंबर टाइम्स एल ओवर ए ई। मेंबर के अंदर फोर्स हमें पता चल चुकी है। एक चीज हम पहले से उस मेंबर के लिए कैलकुलेट करके रखना चाह रहे हैं कि उस मेंबर का एल ओवर ए ई कितना है। यूनिट्स को कंसिस्टेंट रख के, लेंथ भी इंचेस में, एरिया इंच स्क्वायर में, और ई जो है वो किप पर स्क्वायर इंच में है, और फोर्स किप में है, लिहाजा अब आंसर इंच में आ जाना चाहिए, राइट। बात समझ आ गई। यस सर। तो तो जस्ट हमने उन दोनों को, इसको, उन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, उन हर मेंबर की फोर्स और उस मेंबर के लिए एल ओवर ए ई, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ओके सर। सो मैं अब वापस आपको, अच्छा ये चलो दोबारा वापस एक्सेल शीट को देखो आप। सो एक्सेल शीट में मैंने एग्जैक्टली यही किया है, यहाँ पर एलोंगेशन फाइंड करने के लिए, कि मैंने उस मेंबर में फोर्स, आप खुद अपने कैलकुलेटर पे करके देखें, 160.23 इंटू एल ओवर ई एस का है 0.00828, यू गेट 0.1326 इंच, राइट। ये वाला आंसर आपके पास आता है, ये बस ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया, राइट। यस सर। अब आपको हर मेंबर में एलोंगेशन पता चल गई, लेकिन अभी आपको आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, राइट। यस सर। तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं अब आपको उसके लिए इधर आपको लेके आ रहा हूं दोबारा से। अब आपको हर मेंबर की एलोंगेशन तो पता चल गई, राइट। यू नो कि हर मेंबर कितना एलोंगेट कर रहा है। सो मैं आपको अगर यहाँ पे जस्ट एक बना दूं, हर मेंबर की आपको एलोंगेशन जो है, सॉरी यहाँ अगर मैं लिख दूं, पता चल चुकी है, राइट। मेंबर 1 2 3 ये सब की आपको एलोंगेशन पता है, ओके। अब एक आप आ जाए इक्वेशन पे, यानी अगर आप ई के लिए जनरल एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन देखना चाहें ना, तो उसका नाम है एफ टाइम्स कैपिटल एफ। दिस एफ रिप्रेजेंट्स एल ओवर ए ई मैट्रिक्स, राइट। अब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कंफ्यूज ना हो जाना, बस सिर्फ आपको किताब में इक्वेशन लिखी हुई बता रहा हूँ। ये वाला एफ जो है वो मैट्रिक्स है मेंबर फोर्सेस का। तो हर मेंबर की एलोंगेशन कैसे फाइंड होगी, उस मेंबर का एल ओवर ए ई टाइम्स मेंबर फोर्स। बात समझ आ गई बेटा। यस सर। अच्छा अब जरा देखो, मेंबर फोर्स में मेंबर के अंदर एलोंगेशन, ये शॉर्टनिंग आपके पास आ गई है, मेंबर की डिफॉर्मेशन। अब आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है, यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। इनके बीच में रिलेशनशिप इस तरह का है, u इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर इट्स इक्वल टू b ट्रांसपोज टाइम्स u, ये बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये बी मैट्रिक्स भी आपके पास है, तो उसको ट्रांसपोज करना मसला नहीं होना चाहिए। यू इज योर अननोन, दिस इज योर अननोन इन द प्रॉब्लम। यू तो ई तो आपने फाइंड कर दिया हुआ है ना। तो इसको यस अगर सर। आप फर्दर लिखना चाहें, तो यू कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, दैट मल्टीप्लाइड बाय ई मैट्रिक्स। तो अब आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स आपके पास, बी प्राइम की नहीं बात कर रहा हूं, बी मैट्रिक्स जो आपने 3 रोज डिलीट करने के बाद जो यस मैट्रिक्स सर, 9 नाइन बाय बाई 9 नाइन वाला। वाला जो मैट्रिक्स था, उस 9 यस बाई सर। 9 मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके आए, 9 बाई 9
और इधर आपके पास हर मेंबर की एलोंगेशन मौजूद है, ये 9/1 का एक मैट्रिक्स होगा, राइट? Yes, sir. So this is going to give you what? The u values. अच्छा, अब ये जो u values होंगी ये 9 values होंगी, राइट? Yes, sir. यानी 9/1 का एक मैट्रिक्स बनेगा, राइट? अब टोटल दो डिस्प्लेसमेंट्स तो 12 है ना, हर नोड पे दो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट्स है ना, तो हमारे पास तो 9 का आंसर आया। ये 9 वो वाले हैं जो अनरेस्ट्रेन्ड हैं, Yes, sir. जो यहाँ पे रेस्ट्रेन्ड है स्पोर्ट्स उनपे लगी तो हुई है डिस्प्लेसमेंट वहाँ पहले ही के। जीरो है ना। Yes, sir. जो हमने रेस्ट्रेन्ड यहाँ सपोर्ट लगाई हुई उधर कहाँ से डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो तो पहले ही जीरो है। जो Yes, अननोन sir. डिस्प्लेसमेंट थी वो हमें यहाँ से पता चल गई, जो कि रेस्ट्रेन्ड नहीं थे मेंबर्स, उनकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पता चलनी थी ना। Yes, sir. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन दोज डिस्प्लेसमेंट्स। यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट में वो आपको डाटा नजर नहीं आ रहा होगा। किताब के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी स्पेसिफिक थी, मैं आपको अभी उस किताब के प्रॉब्लम पे भी ले जाता हूँ। गिव मी अ मिनट। पता नहीं। ओके, सो किताब में आपको ये नजर आएगा कि उसने जब डिस्प्लेसमेंट सारी फाइंड कर दी हैं, ठीक है, वो वाला बस उस किताब वाले ने, भाई साहब ने सिर्फ ये किया कि ये प्रॉब्लम है और ये डिस्प्लेसमेंट के आंसर आ गए, ठीक है। उसने कहा आप जाने, आप जाने आपका टीचर जाने। अच्छा, उसने प्रॉब्लम ये कहा था कि डिस्प्लेसमेंट तो सारे फाइंड करने के बाद हमें ये बताओ कि व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टू 1.5 इंच। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस हो रही U2 पे 4.88 इंच, राइट? ठीक है, Yes, sir. वो कह रहे Yes, हैं sir. Yes. अगर हमने इसको कम करना है, कहाँ तक रखना है, 1.5 इंच तक लिमिट करना है, तो हम एरिया क्या रखें तो फिर ये कम हो जाएगा। हमें ये पता चल गया कि ये लीनियर रिलेशनशिप है इनके बीच में। अगर हम एरिया रखा हो 10 इंच स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ रही थी 4.88 इंच। Yes, sir. अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हाफ। स्टिफर हो जाएगा ना ट्रस, एरिया बड़ा हो जाएगा, Yes, क्रॉस sir. सेक्शनल एरिया मोटे मेंबर्स लेके आ जाएंगे ना हम, स्टिफर मेंबर्स लेके आ जाएंगे तो उनमें कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होंगी, राइट? बात समझ आ रही है? ये लीनियरली रिलेटेड है यहाँ पे। अभी अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू डिस्प्लेसमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। कैसे? एरिया बड़ा करेंगे क्योंकि उससे ई की वैल्यू कम हो जाती है ना, एल ओवर ए ई की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है, पी एल ओवर ए ई होता है ना इलॉन्गेशन। तो ए को डबल कर दोगे तो ई हाफ हो जाएगा, ई हाफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू की वैल्यूज हाफ हो जाएंगी। सो ये वैल्यू अब ये लीनियर एक रिलेशनशिप है कि अगर 10 इंच रखने से 4.88 इंच रख रहे करना था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को कहाँ लेके आना है, 1.5 पे लेके आना है। तो ये कितने टाइम्स हमने कम करना है, यानी क्या बीच में रिलेशनशिप क्या है, 4.88 इंच से 1.5 पे लेके आना है, तो एरिया को हमें 32.53 इंच स्क्वायर लेके आना पे लेके जाना पड़ेगा। आप 32.53 इंच स्क्वायर करके देख लें तो आपको ये वाली डिस्प्लेसमेंट 1.5 इंच मिलेगी। सिंपली हमने 4.88 डिवाइडेड बाय 1.5 जो आंसर आ रहा था ना, जितने टाइम्स हमने डिस्प्लेसमेंट को कम करना था उतने टाइम्स हमने एरिया को बढ़ा लिया। तो दैट्स हाउ ऑलमोस्ट ट्रिपल हमने कर दिया एरिया को, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को ऑलमोस्ट 1/3 करना था। सो द न्यू एरिया अगर बढ़ा देंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट ये आएंगे। अब आप देखें ये U2 1.5 इंच पे आ जाएगा। बस आपने अब आपको वैल्यू समझ आएगी। अच्छा, अभी नहीं आएगी, चले अभी बताता हूँ आपकी वैल्यू क्या है, इस प्रोसीजर को ऑटोमेट करने की क्या वैल्यू है। हाँ, 3D ट्रसेस को आप रहने दें। आपके असाइनमेंट है बेटा, अभी आप सुन ले, मैं आपको अलग से स्टेटमेंट नहीं भेजने जा रहा हूँ। आपको इधर जितने प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं यहाँ से छोड़ के यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। 2.5 से लेके 2.12 तक, रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 से लेके 2.12 तक जितने प्रॉब्लम, ऐसे 2.6 को रहने दें, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट्स को ना
इंक्लाइन कर दिया है, उसको फिलहाल मैं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहा हूँ। 2.6 को छोड़ के 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.11A और 2.11B और 2.12 और 2.12 तक। ये सारे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, राइट? दुपट्टा लेके मेरे साथ आओ एक मिनट। ये बोतल छोड़ रहा हूँ क्लिनिक, मैं नहीं उठा के लेके जाऊँ। प्लीज अगर आपका बेटा माइक ऑफ कर लिया करें, इसमें ऑप्शन है ना, ऑफ कर लिया करें अगर आपको पर्सनल बात करनी हो, राइट? मेरे सुन लिया असाइनमेंट आपने, ये असाइनमेंट आपने नेक्स्ट वीक वेंसडे को जमा करवानी है और इसी में से आई होप आपका चले, इसी में से आपका क्विज होगा। ओके, इस असाइनमेंट की वेटेज 3% है। ओके, और ये हाथ से नहीं हाथ से नहीं लिखनी, ये आपने एक्सेल पे करनी है और एक्सेल के ही आपने प्रिंट आउट्स जमा करवाने, ठीक है? प्रेजेंटेशन आपने ओके सर। रखनी है सही तरह से, बाकी आपको ये एक्सेल में करना है, राइट? ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बता दी, ये आपने नेक्स्ट टाइम सबमिट करने हैं। दो मेंबर्स तक का आपका ग्रुप बना के आप मुझे मेंबर ग्रुप की फॉर्म में सबमिशन कर सकते हैं, अप टू 2 मेंबर्स। अगर आप ये प्रूव कर सकें आप दोनों मेंबर्स के आप दोनों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया है। इफ यू कैन नॉट प्रूव दैट देन यू बेटर स्टार्ट वर्किंग इट इन सोलो। फिर आप अकेले करें उसको, ठीक है? ओके सर। सर क्विज कब होगा और वो सिर्फ इसी मेथड में से होगा या पीछे वाला सारा इंक्लूड होगा? इसी मेथड में से। ओके सर।